Class students, so we are doing the different rules, different laws to fill the electrons in atomic orbitals, how to fill electrons in atomic orbitals. So in the series, next rule is Pauli's exclusion principle. According to this principle, when we are filling the electrons in orbitals, then only two electrons may exist in one orbital, and even these two electrons must have opposite spin. So when we fill the orbitals, so in S subshell there is one orbital, in P subshell there is three orbitals, and in D subshell there are five orbitals. So what this rule state, actually this, according to this rule, in any orbital you can fill only two electron. In one orbital you can fill only two electron, and even these two electron will have opposite spin. So अगर आपने ये दो इलेक्ट्रॉन भी भरे हैं, तो एक अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो दूसरा की स्पिन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, जो इलेक्ट्रॉन है या तो वो एंटी क्लॉकवाइज चल सकता है या तो क्लॉकवाइज चल सकता है. सो वन ऑर्बिटल कैन हैव ओनली two electrons, and these two electrons will have opposite spin. If you fill the electron with same spin, this is wrong. You have to fill two electrons in one orbital with opposite spin. That is what this rule states. So this is called Pauli's exclusion principle, that one orbital always can have maximum two electrons, and these two electrons will have opposite spin. This rule is called Pauli's exclusion principle. The next rule is Hund's rule of maximum multiplicity. It states that, what is Hund's rules of maximum multiplicity? It states that pairing of electron in orbitals belonging to the same subshell does not take place until each orbital belonging to that subshell has got one electron each, that is singly filled. So this seems to be very lengthy, but it is very easy. This rule is very easy to understand. Hund's rule of maximum multiplicity. What is written in this, I am going to explain you. According to this rule, what is there? Suppose P subshell is there. If P subshell 2p, P subshell is there, px, py, and then in this subshell three orbitals are there. In P subshell, how many orbitals are there? Three orbitals there. 1, 2, 3. Yep, px, yep, py, yep, pz. Yep, 2p orbital. Suppose we have to fill 4 electrons in it. Then you may fill 2 electrons in this and 2 electrons in this. 2 and 2, 4. So this will be wrong. According to this rule, you have to first, क्योंकि ये एक ही सबशेल के हैं, you have to first fill electrons in different orbitals singly. पहले आपने सिंगली भरने हैं, ऐसे नहीं कि इसमें दो आ सकते हैं, इसमें दो आ सकते हैं, तो 2 and 2 4 हम कर देंगे. First you have, because these orbital belongs to the same subshell, P subshell, these three orbital belongs to the same subshell, P subshell. So first you have to fill all the orbitals singly, then pairing will start. Now you have to fill 4 electrons suppose, then one in each orbital, then pairing start. तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो हमने ऐसे फिर इधर भरना. तो ये है एक तरह से राइट वे ऑफ फिलिंग द ऑर्बिटल्स. अगर 2p 4p में 4 भरने हैं तो ऐसा नहीं करना कि फर्स्ट में 2 भर दिया, सेकंड में 2 भर दिया. दैट विल बी रॉन्ग. यू हैव टू फिल 1 1 1, then pairing will start. This is what this rule is saying. It states that pairing of electron in orbital belong to the same shell. अगर वो same shell के orbital है, pairing of the electron in the orbitals belonging to the same subshell, PDF कोई भी हो सकता है, does not take place, pairing नहीं होगी, until each orbital belonging to that subshell got one electron each. जब तक उसमें एक इलेक्ट्रॉन सभी में आ जाए, after that pairing will start. This is what written in this rule. And after that, suppose d orbital is there. Next example, because and you have to fill 5 electron in each d orbital. Then what you will do, because ये है d
एक्स वाई, ये डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर. So these all five orbitals, and we have to fill suppose 5 electrons. Then we cannot fill 2 plus 2 plus 1 5. No, this is wrong way. The right way is first singly fill all the d orbitals, because these 5 orbitals belongs to d subshell. So these all first singly filled. After that pairing will start. So these are the examples. Next is electronic configuration of atom. So electronic configuration is very important topic. What is electronic configuration? Distribution of electrons into orbitals of atom is called its electronic configuration. So जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट ऑर्बिटल्स में से, जैसे कि जो नॉर्मल आपको याद करना है, 1s पहले आएगा सबशेल, 2s उसके बाद में आएगा, 2p सबशेल उसके बाद में आएगा, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, 3d. ये ऐसे एक सीक्वेंस है, वो आपको याद करना पड़ेगा. सो नाउ यू हैव टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स. अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने इनमें इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरने हैं. अब कैसे भरने हैं वो मैं बताऊंगा, और किस एलिमेंट में कितने भरने हैं वो मैं बताऊंगा. जैसे कि हाइड्रोजन है, फॉर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, फॉर हीलियम एटॉमिक नंबर 2, फॉर लिथियम एटॉमिक नंबर 3. ये 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है एटॉमिक नंबर. व्हाट इट टेल्स, एटॉमिक नंबर टेल्स अस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर हाइड्रोजन है उसका एक एटॉमिक नंबर है, मीन्स उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही भरेंगे ना. तो सबसे पहले कौन सा सबशेल आता है, 1s, तो उसमें एक हमने भर दिया. तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई. 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s1. अब हीलियम है, हीलियम में कितने हैं, 2 एटॉमिक नंबर. दैट मीन्स हीलियम हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो 1 2, क्योंकि यहाँ बोल सकते हो कि नहीं वाले सिंगली नहीं, ये 1s में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, 2s में भी एक ही है, 2p में 3 है. जब p भरना तब पहले सिंगली फिल करने हैं, ये अलग अलग है, 1s 2s 2p. सो ये हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया. सो क्या आ गया, 1s2. अब आ गया लिथियम के लिए 3, 1s2 2 इसमें भर दिया, 2s1 एक इसमें भर दिया, 2 + 1 3. सो दिस वे यू कैन फिल द इलेक्ट्रॉन्स. सो नेक्स्ट इज अगला हमारे पास है बेरिलियम. बेरिलियम है एटॉमिक नंबर 4, 1 2 1 2, 1s2 2s2. इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी बच्चों, 1s2 2s2. आफ्टर दैट बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 2 2 ये 1. उसके बाद हमारा नाइट्रोजन है, जो उसका समझने वाला बहुत ही ज़रूरी है नाइट्रोजन का. जैसे कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है 7. सो 1s2 2s2, 2 4 हो गए यहाँ पे, और p3 आएगा, क्योंकि 2 + 2 4 3 जो बचे हैं 7 में से. तो यहाँ पे फिर होना ज़रूर लगता है कि ये पहले सिंगली फिल्ड होंगे, क्योंकि ये तीनों ऑर्बिटल बिलोंग्स टू p सबशेल. ये 1s को बिलोंग करता है, ये 2s को, ये दोनों सेम नहीं है, लेकिन ये तीनों क्या है, सेम सबशेल को बिलोंग करते हैं. सो दे विल बी फिल्ड सिंगली. तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करने के लिए. आफ्टर दैट कार्बन में कितना 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 2, यहाँ 1 2 आ गया. इस तरह नियोन का क्या है, 10 एटॉमिक नंबर है. सो 2 2 इसके बाद 10 है, इसलिए यहाँ भी 6 ही फुली फिल्ड होगी जो कॉन्फ़िगरेशन. मैग्नीशियम है, सल्फर है, आर्गन है, फॉस्फोरस है. अब बात करते हैं अगर हम फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस में 15 हमारे पास इलेक्ट्रॉन टोटल है. फर्स्ट में 2 आ गए, सेकंड में 2 आ गए, 2 2 4, और जो इसमें p6 इसमें 6 ही आ सकते हैं, 3 ऑर्बिटल है, तो 10 हो गए. 2 2 2 ये करके 5 बार 10 हो गए. तो उसके बाद 3s शुरू हो जाता है हमारे पास, 3s में भी 2 आ गए, ये 12 हो गए. लेकिन हमारे पास टोटल है कितने हैं, 15. तो उसके बाद जो p ऑर्बिटल बचा उसको भी ऐसे हमने क्या किया, सिंगली फिल किया. सो दिस इज द वे हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन. अब आर्गन की बात करें, 18 है, 1s2 ये आ गया, 1s2 2s2 2p 6 है इसमें, तो 10 हो गए. सो 3s2 12 हो गए, टोटल 18 है, 6 और पढ़ने पड़ेंगे 12 के बाद. सो ये क्या है, 3p6, 1s 2s 2p 3s 3p 6. So this is the configuration. What is the configuration of argon? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. This is the way how to write the electronic configuration. उसके बाद नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आ जाता है वो है
स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। देखो बच्चों, इन केस ऑफ नाइट्रोजन वी हैव हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ p सब शेल 1 1 1, सभी में 1 है। ये तीन हमारे पास ऑर्बिटल है, तीनों हाफ फिल्ड है हमारे ऐसे, तो इसको बोलते हैं हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। और जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्टेबल। इसी तरह फुली फील्ड होती है, जैसे नियोन है, नियोन में क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6, तो ये भी क्या है, p के तीनों ऑर्बिटल क्या है, कंप्लीटली फिल है, फुल्ली फिल्ड है, ये भी क्या होती है, स्टेबल। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी सबशेल इज वेरी वेरी स्टेबल। ये भी आपने पॉइंट ध्यान में रखना है। क्यों स्टेबल है ये, उसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ये दो रीज़न है उसके। एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, क्यों ये स्टेबल है हाफ फील्ड, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सभी में एक एक है, यूनिफॉर्मिटी है, इसमें सिमेट्री है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है किसी के पास एक है, किसी के पास एक भी नहीं है, किसी के पास एक है, किसी के पास दो है। सो द सिमेट्रिकल, द यूनिफॉर्मिटी इज देयर, सो सिमेट्री लव्स स्टेबिलिटी। सो ये है हमारे पास कि जो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसलिए ये स्टेबल है। और फुली फिल्ड है, इसमें भी, इसके पास भी दो है, इसके पास भी दो है, इसके पास दो है, सभी के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो यहाँ भी सिमेट्री है। सो आपको जैसे मैंने बताया स्टेबिलिटी लव्स सिमेट्री, सो इसलिए ये क्या होते हैं, स्टेबल। सो दूसरा इनमें पॉइंट होता है कि एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसलिए स्टेबल होते हैं हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड, और दूसरा जो है वो एक्सचेंज एनर्जी, इनमें एक्सचेंज एनर्जी भी ज़्यादा होती है, ये याद करना पड़ेगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्सचेंज एनर्जी। एक तरीका और है बच्चों, जैसे कि हमने लिखना हो, एक तरीका और है लिखने का, जैसे कि हमारे पास नोबल गैसेज है, हीलियम, नियोन, आर्गन। हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कि हमारे को सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इसका 15 होता है, तो हमने क्या करना है, नियोन तक कितने आ गए, नोबल गैस तक, नियोन तक आ जाते हैं 10, नियोन तक 10 आ गए। तो 10 आपने ऐसे नहीं लिखना 1s2 2s2 2p6, ये नहीं लिखना, सीधा लिखना नियोन तक 10 आ गए। उसके बाद 3s हो गया, उसके बाद क्या आ गया, 3p आ गया। तो 3s में क्योंकि 5 है, 3s में 2 आ गए, और 3p में कितने आ गए, 3, 2 और 3 5 और 10 आ गए नियोन तक। तो ऐसे भी आप लिख सकते हो नियोन। जैसे आपने मान लो पोटाशियम की लिखनी है, पोटाशियम का होता है 19, तो 19 का क्या करोगे, अब आर्गन तक आ गए 18, तो बचा कितना, वो आप किस में लिख दोगे, 4s1 में। ऐसे करके आप जो इनको एक नोबल गैसेस के अकॉर्डिंग भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। ओके।